Okay, let's solve exercise 2.3. In previous video, we have solved 2.2 and used Pythagoras theorem. In the same exercise, we're going to use Pythagoras theorem. So before doing this exercise, just refer that video. So let's see. In the first question, what is when use Pythagoras theorem to calculate the length of the unknown side in each of this diagram? तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल one side is unknown, that is m is unknown and this is the side of the triangle. यहाँ पे क्या है 3 सेंटीमीटर और एज आई टोल्ड लास्ट टाइम दैट 90 डिग्री के सामने जो साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनियस. 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होता है दैट इज कॉल्ड hypotenuse. So let's say this is hypotenuse represented by h and this is side 1 and this is side 2. So by Pythagoras theorem you can say by Pythagoras theorem you can say that hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. तो यहाँ पे hypotenuse कितना है 5 का स्क्वायर and side 1 is how much 3 square and side 2 is what m square. Okay, that we need to find. You can use your calculator. 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस m स्क्वायर. अब क्या होगा यहाँ पे हमें m फाइंड करना, राइट? तो जिसे फाइंड करना होता है दैट शुड बी अलोन, मतलब ये m को हमें अलोन करना है. तो 9 विल शिफ्ट दैट साइड, है ना? एंड एज सुन एज इट विल क्रॉस द इक्वल टू, this plus 9 will become minus 9. What I said, as soon as this 9 will cross the equal to, it will become from plus to minus 9. So 25 minus 9 is equal to m square. So m square is equal to 16. अब यहाँ पे क्या होगा, हमें तो m चाहिए, है ना? m स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए m. तो m ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा. So you will get root of 16 and you will get 4. तो m value is 4, actually 4 centimeter. सेंटीमीटर क्यों? बिकॉज रेस्ट लेंथ आर गिवन इन सेंटीमीटर. तो m भी यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर में आएगा. इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट डाउन दिस. स्टॉप द वीडियो, नोट डाउन. साइमल्टेनियस नहीं करना है आपको, पहले अंडरस्टैंड करना है, फिर वीडियो को स्टॉप करके नोट करना है. विल सी नेक्स्ट वन नाउ. I will take directly fifth question. Rest are similar. You can try by yourself. And after fifth, I will take one or two similar kind. Let's say I'm taking fifth question. So in fifth question, again one unknown side T is given. Hypotenuse is given 7.5 centimeter, and other side is given 7.2 centimeters. So you can just leaving hypotenuse. First decide which side is hypotenuse. Side opposite to 90 degree is hypotenuse, correct? And the remaining two side you can write S1 S2. बाकी दो साइड को किसी को भी आप S1 किसी को भी आप S2 लिख सकते हो. इफ यू वांट यू कैन राइट दिस एज S1 एंड दिस एज S2. ठीक है, आप किसी को भी लिविंग हाइपोटेनियस, रिमेंबर दैट हाइपोटेनियस को लीव करके बाकी दो साइड को आप S1 S2 नोट कर सकते हो. तो यहाँ पे अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, by Pythagoras theorem you can say that hypotenuse square is equal to side 1 square plus side 2 square. तो यहाँ पे आएगा 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर. S2 is t. Understood? So now use your calculator as I am using here.
So 7.5 multiplied by 7.5 is 56.25, correct? 56.25. And again 7.2 multiplied by 7.2. 7.2 multiplied by 7.2. 7.2 का स्क्वायर, 7.2 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 7.2 multiplied by 7.2. You will get 51.84. 51.84. और ये क्या आएगा? t का स्क्वायर. देन वंस अगेन यू हैव टू फाइंड t. तो अगर t को फाइंड करना है तो इसको अलोन करना पड़ेगा. तो ये जो नंबर है 51.84, इसे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा दिस साइड, करेक्ट? तो जैसे ही इक्वल टू क्रॉस करेगा, ये प्लस था और फिर ये क्या हो जाएगा? माइनस. तो 56.25 ये होगा माइनस 51.84 विच इज इक्वल टू टी स्क्वायर. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आप कैलकुलेटर में कर लो या खुद से कर लो, कुछ भी चलेगा. 56.25 माइनस 51.84, that is 4.41, and this is t square. अभी आपको t फाइंड करना है तो ये स्क्वायर इस साइड जाएगा और ये क्या बनेगा? स्क्वायर रूट, that is 4.41 is equal to t, sorry, square we have used, so t है ना. हमें t फाइंड करना है, t स्क्वायर नहीं फाइंड करना है ना. तो स्क्वायर को आप उस साइड शिफ्ट करोगे, रूट बन जाएगा. तो इसका रूट क्या होता है? 441 का रूट होता है 21, तो ये हो जाएगा 2.1. and this is centimeter. You can use calculator to find root also. So this is the answer. If understood, please note down this. Stop the video, note. Next we'll see एक और सम लेते हैं. Let's say I will take sixth question, otherwise you can try rest are same. I will take fourth one क्योंकि वो 0.0 में है तो कुछ confusion होगा आपको. Although it's all similar kind. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. वंस अगेन यहाँ पे एक अननोन साइड है s, यहाँ पे एक साइड है 0.3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है. तो वंस अगेन फर्स्ट यू नीड टू डिसाइड हाइपोटेनियस. तो 90 डिग्री कहाँ पे? यहाँ पे इसके सामने वाला साइड, ये क्या होगा? हाइपोटेनियस. एक बार हाइपोटेनियस डिसाइड हो गया तो बाकी के अदर साइड क्या होगी? S1 S2, साइड 1 साइड 2. सो वंस अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू कैन से? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर. तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या है? 0.5 का स्क्वायर, साइड 1 है s का स्क्वायर, साइड 2 है 0.3 का स्क्वायर. देन विल गेट हियर 0.5 मतलब इसका क्या होगा? 5 होता है, तो ये होगा 0.25, ठीक है. यहाँ पे आएगा एस स्क्वायर प्लस 0.09 होगा, ठीक है. यू कैन यूज एंड रेक्टिफाई फ्रॉम कैलकुलेटर ऑल्सो. 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 आप खुद से भी कर सकते हो या मैन्युअली भी कर सकते हो. फिर यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एस स्क्वायर चाहिए, राइट. वी वांट टू फाइंड एस स्क्वायर. हमें एस स्क्वायर फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या करना होगा? ये जो नंबर है एस को अलोन करना पड़ेगा, तो ये जो 0.09 है इधर जाके माइनस होगा, ठीक है. तो ये होगा 0.25 माइनस 0.09 विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर. आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पे आएगा 0.25 माइनस 0.09, दैट इज 0.16. तो एस स्क्वायर क्या आएगा? 0.16. इसका रूट लोगे अगर तो एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.16, so that is 0.4. So this is in centimeter. I hope it is clear. Please note this. Let's see the seventh question. Question number 7. An isosceles triangle has base and side
ऑफ 50 सेंटीमीटर, कैलकुलेट इज हाइट। देखो यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है, तो लेट्स ड्रॉ दिस आइसोसेलेस ट्रायंगल फर्स्ट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। सो लेट्स एज्यूम ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड सेम होते हैं और बेस डिफरेंट साइड होता है ना। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। बेस देखो यहाँ पे क्या बोला है, 14 सेंटीमीटर। तो विल राइट दिस इज 14 सेंटीमीटर क्योंकि ये बेस है। और बोला साइड इज 50 सेंटीमीटर। साइड मतलब देखो ये दो साइड इक्वल होता है, रिमेंबर दैट दिस साइड एंड दिस साइड दे बोथ आर इक्वल। तो ये 50 सेंटीमीटर है और ये भी 50 सेंटीमीटर है। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा, इन्होंने बोला कि हाइट फाइंड करना है। रिमेंबर वन थिंग, हाइट एंड बाइसेक्टर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, अंडरस्टैंड दिस। क्या बोला मैंने, हाइट एंड, हाइट मतलब क्या होता है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, सो लेट्स एबीसी, हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं। लेट ट्रायंगल एबीसी बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। एंड समझो यहाँ पे ए डी, ठीक है, एंड ए डी इज द एल्टीट्यूड, ए डी इज द एल्टीट्यूड ऑल्सो। Since triangle ABC is an isosceles triangle, क्योंकि ये एक isosceles triangle है, therefore इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड AD, वो किसके इक्वल होगा, इट विल बी बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, और यू कैन से मीडियन, इट इज ऑल्सो मीडियन। ठीक है, मतलब क्या है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसका जो एल्टीट्यूड होता है वही उसका मीडियन होता है। अब मीडियन से क्या होगा, मीडियन का मतलब ये बीच में कट कर रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर यू कैन से दैट BD is equal to DC which is equal to 7 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, इसको जरा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये जो इसका एल्टीट्यूड है, ये एल्टीट्यूड मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस एल्टीट्यूड। ठीक है, ये जो एल्टीट्यूड है ये बेसिकली क्या होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड, यही आपका क्या होगा, मीडियन भी होगा। नाउ इट शुड बी क्लियर, ये जो एल्टीट्यूड है वही मीडियन होगा। तो इसका मतलब ये 7 सेंटीमीटर होगा, है ना, और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, देखो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल देखो, ये जो ट्राइंगल है इसको देखो अभी, कोई भी एक ट्राइंगल ले लो ना इसमें से। इन ट्राइंगल, दोनों भी ट्राइंगल सेम है, इन ट्राइंगल एडीसी, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एडीसी की। ये एडीसी है, ए डी सी, ये 90 डिग्री पे है क्योंकि एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे होता है। तो ये 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैंने बताया आपको 7 सेंटीमीटर क्यों होता है। और ये हाइट है जो हमें फाइंड करना है, और एसी यहाँ पे कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग हाइट एडी को फाइंड करना है, हमें हमें क्या करना है, हाइट एडी को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, 90 के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस, मैंने पहले आपको बताया था। तो समझो ये साइड 1, ये साइड 2, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ये होगा साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर कितना होगा, 7 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना होगा, 50 का स्क्वायर।
तो साइड वन का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, और ये होगा 5 5 जा 25 और ये 00। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 49 इधर जाके माइनस होगा, तो साइड वन का स्क्वायर इज 2500 माइनस 49। ठीक है, अवर साइड वन यू कैन राइट साइड वन, साइड वन क्या है बेसिकली उस पर लिख दो ना, एडी है, अवर साइड वन इज एडी। तो बेसिकली हमें एडी फाइंड करना है, एडी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे एडी का स्क्वायर क्या होगा, इनको माइनस करो, 2500 माइनस 49, 2451। ठीक है, अब ये स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे जाके रूट बनेगा, तो एडी यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2451, और इसका रूट ले लो आप, इसका रूट ले सकते हो आप, तो इसका रूट, हालांकि डेसिमल में आ रहा है, चेक कर लो सब कुछ बराबर है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है। बेस जो है वो 14 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर है, करेक्ट है। एंड ठीक है, यस एवरीथिंग इज करेक्ट। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो डेसिमल में आएगा। ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2451 का रूट, तो 49.5 के आसपास आ रहा है, या 49 राउंड ऑफ करोगे तो 51 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हाइट है वो कितना आ रहा है, देयरफॉर हाइट इज 49.51 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। अब पार्ट बाय पार्ट इसको पहले नोट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दिस फर्स्ट पार्ट, स्टॉप द वीडियो एंड नोट दिस। नोट कर लिया? लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। स्टॉप द वीडियो, नोट दिस सेकंड पार्ट। डन? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। See the eighth question now. Eighth is a ladder 7.5 meter long rest against a wall. The bottom of the ladder is 2.1 meter from the wall. Calculate how far the ladder reaches up the wall. देखो यहाँ पे थोड़ा इसको समझते हैं डायग्राम से। क्या बोल रहा है कि एक वॉल है, ठीक है, और ये इसका बेस है, और यहाँ पे एक लेडर है। ठीक है, लेडर कुछ इस तरीके से, लेडर जो है यहाँ से वो वॉल, ये वॉल पे रीच कर रहा है। ठीक है, दिस इज लेट्स से वॉल, इमेजिन करो इसे। ठीक है, एंड दिस इज लेडर, तो ये एक लेडर है और ये वाला वॉल है, एंड दिस इज द बॉटम ऑफ लेडर, है ना, बॉटम ऑफ लेडर। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है बॉटम ऑफ द लेडर, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि बॉटम कहाँ पे है। तो वॉल से जो बॉटम है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लेडर है जो 7.5 मीटर लॉन्ग है, तो ये लेडर है जो 7.5 मीटर लॉन्ग है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, उसके बाद वॉल जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, रिमेंबर दैट, है ना, वॉल थोड़ी ना ऐसे टेढ़ा होगा, वॉल यहाँ पे 90 डिग्री पे। फिर बॉटम ऑफ द लेडर जो है वो 2.1 मीटर है वॉल से। ये वॉल है, वॉल से बॉटम कितना दूर है, वॉल से बॉटम कितना दूर है, 2.1 मीटर दूर है। ठीक है, इट इज फार अवे फ्रॉम द वॉल। कैलकुलेट हाउ फॉर द लेडर रीचेस, तो लेडर जो रीच कर रहा है, लेट से वो हाइट एक्स है। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो लेडर है वो कितना वॉल के टॉप तक पहुंचा है, वो ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दो, लेट लेडर रीचेस एक्स, सब कुछ मीटर में, तो ये भी एक्स मीटर में आएगा, एक्स मीटर, या फिर
एक्स ले लो या एक्स मीटर ही ले लो, क्या फर्क पड़ता है, एक्स मीटर टू द वॉल। ठीक है। नाउ वंस अगेन यू कैन सी दिस इज फॉर्मिंग राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या डिसाइड करना है कि 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा ये, तो ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, इसको साइड वन ले लो और इसको साइड टू ले लो। ठीक है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा, हाइपोटेनियस, रिमेनिंग टू साइड, साइड वन साइड टू। तो यहाँ पे लिखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज साइड वन का स्क्वायर प्लस साइड टू का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस कितना है, 7.5 का स्क्वायर, एंड साइड वन यहाँ पे कितना है, 2.1 का स्क्वायर, साइड टू कितना है, एक्स का स्क्वायर। वंस अगेन यू कैन यूज द कैलकुलेटर, तो इसका स्क्वायर ले लो। ठीक है, और इसका आएगा 441 और ये एक्स स्क्वायर आएगा, यू कैन यूज द कैलकुलेटर। अब यहाँ पे एक्स फाइंड करना है, तो ये जो प्लस वाला है वो यहाँ पे जाके क्या होगा, माइनस। तो 56.25 माइनस 4.41 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 56.25 माइनस 4.41, इज एवरीथिंग इज करेक्ट, देख लो एक बार, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1। ठीक है, और इसको हम लोग माइनस कर रहे हैं 56.25, तो 51.84। तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 51.84। ना हमें एक्स चाहिए, एक्स स्क्वायर नहीं फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। तो ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या होगा, रूट, एक्स विल बी रूट ऑफ 51.84। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 51.84 उसका रूट 7.2। तो एक्स हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स इज 7.2 मीटर। ठीक है, सो यू कैन राइट लेडर रीचेस द वॉल एट 7.2 मीटर। ठीक है, लेडर जो है वो 7.2 मीटर तक वॉल के है। सो आई होप इट इज अंडरस्टूड। प्लीज नोट फ्रॉम हियर, पहले फर्स्ट पार्ट है, वीडियो को स्टॉप करो, इसको अच्छे से लिखो, एक अच्छा नोट्स बनाओ। ठीक है, अच्छा नोट्स बनाने से आप उसको अच्छा रिफर कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो। नोट कर लिया, देन सेकेंड पार्ट, मतलब ये लास्ट का पार्ट जो है देख लो, इसको नोट कर लो। चलो, हाउ मच शॉर्टर इज देन 50 मीटर लॉन्ग पूल, मतलब यहाँ पे दो पूल की बात कर रहे हैं। समझो एक ये स्विमिंग पूल है, एंड ये इसका डायगोनल दिया हुआ है यहाँ पे 52 मीटर एंड 20 मीटर वाइड, और इसका लेंथ हमें पता नहीं है। ठीक है, और एक अनदर पूल है जो 50 मीटर लॉन्ग है, तो ये वाला इससे कितना शॉर्टर है ऐसा पूछ रहे हैं ये लोग। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेंथ पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब ये स्विमिंग पूल वन है, ये स्विमिंग पूल टू है, जिसका लेंथ यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई है, दैट इज 50 मीटर लॉन्ग। और हमें ये वाले जो पुल है फर्स्ट वाला, उसका लेंथ हमें पता नहीं है, तो वो कितना लेंथ है वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो इजीली वी कैन फाइंड दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्या आएगा, 52 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। इसको फाइंड करते हैं, यहाँ पे होगा 52 मल्टीप्लाई बाय 52, दैट इज 2704, और ये आएगा एल स्क्वायर, और ये आएगा 400। ये 400 इस साइड जाकर माइनस होगा, सो विल गेट, so we'll get 2704 minus 400 which is equal to L square। तो ये होगा 2304 which is equal to L square। इसको यहाँ पे रूट में कन्वर्ट करो,
मतलब यहाँ पे रूट आएगा, सॉरी, स्क्वायर का हो जाएगा रूट 2304। अब इसका रूट आइडेंटिफाई करो पहले, 2304 का रूट, दैट इज 48। तो ये जो पहला वाला स्विमिंग पूल है उसका लेंथ कितना आ रहा है, 48 मीटर, और इसका कितना लेंथ है, 50 मीटर। तो देयरफॉर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा था, हाउ मच शॉर्टर इज देन 50 मीटर लॉन्ग पूल, है ना। तो यहाँ पे लिखो इट इज, कितना शॉर्ट होगा, देखो यहाँ पे 50 मीटर और यहाँ पे 48 मीटर है। इट इज शॉर्ट बाय 50 माइनस 42 48, दैट इज 2 मीटर। इट इज शॉर्ट बाय 50 minus 48, that is 2 meters. Understood? It was easy question. Please note this. Next we'll see 10th and the last question. ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द स्क्वायर टाइल। तो स्क्वायर टाइल्स मतलब ये पूरा एरिया आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली। ठीक है, तो देखो ये कैलकुलेट करने के लिए यू कैन इजीली कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो दैट विल बी, अच्छा उसको कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको बेस और हाइट, हाइट है आपके पास, बेस निकालना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये 18 सेंटीमीटर है और ये 36 सेंटीमीटर है, इसको आप एक्स ले लो। ठीक है, देखो ये वाला जो साइड है यहाँ से, इसको जरा समझो पहले, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड है, ठीक है, दिस साइड, ये जो साइड है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कोई और कलर करता हूँ, दिस साइड फ्रॉम हियर टिल हियर। ठीक है, ये जो ग्रीन वाला साइड है ये कितना होगा सोचो जरा, ये टोटल एक्स है ना, ये टोटल तो एक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स है, तो ये होगा बेसिकली एक्स माइनस 18। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 है, समझो जरा इसको, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है 18, और ये टोटल एक्स है, टोटल कितना है, एक्स है। तो अंदर का जो स्क्वायर है ना, इनसाइड, इनसाइड का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, दैट इज एक्स माइनस 18। अंडरस्टूड, इसका एक साइड कितना है, एक्स माइनस 18, ये भी कितना होगा एक्स माइनस 18, ये भी कितना होगा एक्स माइनस 18, और ये भी कितना होगा एक्स माइनस 18। तो इसका मतलब क्या है, आपको फाइंड करना है सबसे पहले एक्स। तो इन बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले ये एक्स फाइंड कर लो, तो ये आएगा 36 का स्क्वायर, मतलब इसका यू कैन यूज दिस 36 मल्टीप्लाई बाय 36, 1296, देन 18 multiply by 18, so that is 324 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाके माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर इज 1296 माइनस 324। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, इसे माइनस करो आप, 1296 माइनस 324 एंड दैट इज 972, 972, और ये स्क्वायर यहाँ पे जाके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट ऑफ 972, दैट इज 31 पॉइंट्स को राउंड ऑफ करके लेना पड़ेगा, 31.18, 31.18, काफी इसको और टफ कर दिया गया है डेसिमल में लेकर। तो जो स्क्वायर है, ठीक है, देखो टोटल एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा, समझो जरा इसको। साइड ऑफ, पहले ये निकालो, साइड ऑफ इनसाइड स्क्वायर, साइड ऑफ इनसाइड स्क्वायर क्या होगा, 31.18 माइनस 18, तो ये कितना होगा, 31.18 माइनस 18, दैट इज 13.18, 13.18।
सेंटीमीटर के आसपास आएगा। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ टाइल्स, ठीक है, एरिया ऑफ टाइल्स क्या होगा? देखो यहाँ पे ट्राइंगल कितने टोटल 4, तो 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एक इनसाइड स्क्वायर है ना, प्लस एरिया ऑफ इनसाइड स्क्वायर, जो स्क्वायर इनसाइड है वो, तो ये आएगा 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है यहाँ पे, अभी हमने निकाला ना ये 31.18 इंटू 18, हाइट इज 18, समझ रहे हो ना आप यहाँ पे? देखो ना इसका ये कितना है 31.18, ये बेस हो गया, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट। अंडरस्टूड, ट्राइंगल का ये बेस हो गया, ट्राइंगल का ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, और यहाँ पे साइड कितना है उसका 13.18, 13.18 मल्टीप्लाई बाय 13.18। अब इसको कैलकुलेट करना आपको, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, तो 2 इंटू 31.18 इंटू 18 प्लस इसको आप कैलकुलेट कर लो, मल्टीप्लाई बाय 13.18, तो 173, इसको भी राउंड ऑफ करके ले लो आप, तो 173.7 आएगा, 173.7। ठीक है, मतलब ये राउंड ऑफ करके लेना पड़ेगा क्योंकि आंसर जो है वो डेसिमल में है। तो यहाँ पे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 31.18 मल्टीप्लाई बाय 18, so that is 122.5, 1122.5 प्लस 173.7, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1122.5 प्लस 173.7, 129 1296.2, 1296.2। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते नहीं है, बट क्या ये आपके पेशेंस लेवल को बढ़ाता है, और मैथ्स के अगर डिफिकल्ट सम्स को आप करोगे तो इससे क्या होगा, आपको बाकी सब सम इजी लगने लगेंगे। ठीक है, अगर ये एग्जाम में आता नहीं है तो दिया क्यों जाता है, टू गिव यू गुड प्रैक्टिस, एक एक्सीलेंट प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं सो दैट आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा पुशअप और ले ले, है ना, और डिफिकल्टी को झेले, और सो दैट आपको बाकी के सब इजी लगने लगे। ठीक है, सेकेंड डायग्राम कुछ ऐसे ही है, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, आई एम लिविंग ऑन यू, सो दैट इज अ होमवर्क, वी कैन स्टॉप हियर। इसको नोट डाउन कर लो, पहले ये फर्स्ट पार्ट स्टॉप करके नोट डाउन कर लो, फिर ये सेकेंड पार्ट है, इसको भी स्टॉप करके नोट डाउन कर लो।